So, very good evening, all the participants. Today, let us start with this individual insolvency. Section 94. Section 94 to Section 120. Individual insolvency. Some of the concepts we have already seen in Fresh Start. In Fresh Start, there is a concept of moratorium, interim moratorium also. Similarly, here, in insolvency resolution process, there is a concept of interim moratorium and moratorium. Maximum period is 180 days. Another important concept is there is a concept of repayment plan here. In case of corporate insolvency, there is a concept of resolution plan, but here there is a concept of a repayment plan. And repayment plan has to be prepared by the debtor only. So debtor will prepare the repayment plan in consultation with RP. But it should be justifiable and they should also agree. The creditor should also agree. In case they do not agree or the repayment plan is not successful, then they can go in for bankruptcy. And repayment plan has to be approved by more than 3/4 of the creditors in value. More than 3/4. The wording is more than 3/4. So these are some of the concepts of individual insolvency. Now let us see. Section 94. Section 94 क्या बोलता है? Section 94 बोलता है कि debtor can apply. So in individual insolvency, either the debtor or the creditor can apply for individual insolvency. And who can apply under part 3? It could be either an individual or a partnership firm. ठीक है. अब 94 क्या बोलता है? सेक्शन 94 बोलता है कि डेटर कैन अप्लाई. क्या डिफॉल्ट होना जरूरी है? वेदर डिफॉल्ट इज कंपलसरी या बिना डिफॉल्ट के भी अप्लाई कर सकते हैं? डिफॉल्ट के बारे में क्या कहना है? डिफॉल्ट होगा तभी तो अप्लाई करेंगे सर. राइट. सो डिफॉल्ट इज नेसेसरी. 94(1) says a debtor who commits a default. अच्छा, whether the name of the RP needs to be given compulsorily? नो सर. No, it is. So he may or may not give. Debtor or creditor, they can apply on their own. They can apply through RP. Creditor can apply singly or jointly. ठीक है. So debtor, section 94 says a debtor who commits a default may apply either personally or through a RP to the adjudicating authority for initiating the insolvency resolution process by submitting an application. Where the debtor is a partner of a firm, such a debtor shall not apply in respect of the firm unless all or majority of the partners of the firm file the application jointly. So in case insolvency petition has to be filed by the partnership firm, then majority, either all or majority, they file the application jointly. ठीक है. An application under subsection 1 shall be submitted only in respect of debts which are not excluded debts. ठीक है. एक्सक्लूडेड डेट्स के लिए एप्लीकेशन नहीं हो सकती. ठीक है. सो इट इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग डेट्स. And a debtor shall not be entitled to make an application under subsection 1 if he is an undischarged bankrupt, undergoing a fresh start process, undergoing insolvency resolution process, or undergoing a bankruptcy process. ठीक है. A debtor shall not be eligible to apply if an application under this chapter has been admitted in respect of the debtor during the period of 12 months preceding the date of submission of the application under this section. ठीक है. अगर एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, ठीक है, इन द लास्ट 12 months, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 months प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, तो ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई. मतलब आपने आज अप्लाई की है और इसमें देखो मेन बात क्या है. ये क्या कहता है कि हैज बिन एडमिटेड. अगर लास्ट 12 months से एप्लीकेशन एडमिट हुई है, देन यू कैन नॉट अप्लाई. ठीक है. ये है आपका 94.
नाउ 95 कहता है एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। अच्छा, उसके बाद में 94 में दी एप्लीकेशन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकॉम्पनीड विद सच फीस एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। तो कौन सा इसके लिए है आपका फॉर्म नंबर? इसके फॉर्म नंबर आपको देखने पड़ेंगे। एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर्स, उसके अंदर आपको इसका फॉर्म नंबर मिलेगा। अनिल जी, कौन सा फॉर्म नंबर है इसका? आइडिया कुछ? सर फॉर्म नंबर ए होगा ना सर? एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इसका फॉर्म नंबर है, हम्म फॉर्म ए। फॉर्म नंबर है एप्लीकेशन बाय गारंटर टू इनिशिएट बैंक्रप्सी प्रोसेस। ठीक है जी। और अगर क्रेडिटर अप्लाई करेगा तो फॉर्म नंबर बी। बी। बी रहेगा। ठीक है, एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर। और फीस कितनी लगानी है इसके साथ में? 2000 सर। फीस 2000। ठीक है जी, चलिए। यस सर। 94 हो गया। 95 बोलता है क्रेडिटर सिंगली और जॉइंटली कैन अप्लाई टू ए, फॉर्म नंबर बी हो गया, प्रूफ ऑफ डिमांड एंड नॉन पेमेंट। यहाँ डिमांड भी करना है और प्रूफ ऑफ नॉन पेमेंट भी होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ डेट फेलियर टू पे विद इन 14 डेज। तो यहाँ पर पीरियड कितना है? 14 डेज है। जैसे आपका CIRP में कितना पीरियड है? 10 डेज का, है ना? यहाँ पर क्या है कि 14 डेज का पीरियड, 14 डेज तक आपको वेट करना। 95 में 95 कहता है एप्लीकेशन बाई क्रेडिटर। तो यहां पर कोई डिस्टिंक्शन है क्या फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑपरेशनल क्रेडिटर में? देयर इज नो सच डिस्टिंक्शन। यहां पर क्रेडिटर मतलब क्रेडिटर। ठीक है, दोनों ही एप्लीकेशन जो लगाएंगे फॉर्म बी के अंदर ही लगाएंगे, चाहे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हो चाहे वो ऑपरेशनल क्रेडिटर, चाहे वो सिंगल एप्लीकेशन हो चाहे ज्वाइंट एप्लीकेशन। ठीक है, ए क्रेडिटर में अप्लाई आइदर बाय हिमसेल्फ और जॉइंटली विद अदर क्रेडिटर्स और थ्रू ए आरपी। ठीक है, आरपी का नाम देना भी जरूरी नहीं है। और अगर पार्टनरशिप फर्म में है तो किसके अगेंस्ट में लगा सकते हो आप? सपोज ए क्रेडिटर वांट्स टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट ए पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म में क्या लगा सकते हैं? जैसे मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर है, तो आपकी चॉइस है। आप पार्टनर ए के अगेंस्ट में लगाओ, पार्टनर बी के अगेंस्ट में लगाओ, पार्टनर सी के अगेंस्ट में लगाओ, पार्टनर ए बी के अगेंस्ट में लगाओ, पार्टनर ए सी के अगेंस्ट में लगाओ, पार्टनर बी सी के अगेंस्ट में लगाओ। आपकी मर्जी। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया है? एनी वन और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म, या फिर आप फर्म के अगेंस्ट में लगाओ। ठीक है, चॉइस आपकी है, क्रेडिटर की चॉइस है, क्योंकि अल्टीमेटली लायबिलिटी तो जो है जॉइंट एंड सेवरल है। ठीक है, where an application has been made against one partner in a firm, any other application against another partner in the same firm shall be presented and or transferred to the adjudicating authority in which the first mentioned application is pending for adjudication, and such adjudicating authority may give such directions for consolidating the proceedings. ठीक है, एप्लीकेशन के साथ में क्या लगाना है आपको? डेट्स ओड बाय द डेटर टू द क्रेडिटर और क्रेडिटर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एज ऑन द डेट ऑफ द application. Failure by the debtor to pay the debt within a period of 14 days of the service of the notice of demand and relevant evidence of such default and non-payment of debt. The creditor shall also provide a copy of the application made under subsection 1 to the debtor. Creditor को एक कॉपी डेटर को भी देनी है। अच्छा, नोटिस ऑफ डिमांड के लिए कोई फॉर्मेट है क्या? नोटिस ऑफ डिमांड, हाँ जी, तो नहीं है कोई डिमांड का ऐसा फॉर्मेट नहीं। सर एक है फॉर्म सर, ए तो फॉर्म रिटन बी है। कॉन्सेप्ट, हाँ जी। फॉर्म बी है सर, एक जगह देगा तो फॉर्म बी इसमें ए सही। क्लेम विद प्रूफ बाय ए क्रेडिटर। फॉर्म सी प्रॉक्सी फॉर्म है, ऐसा कोई डिमांड नोटिस का फॉर्म अलग से नहीं है। ठीक है जी, वेरी करेक्ट। चलो,
failure by the debtor to pay the debt within a period of 14 days, relevant evidence of such default or non-payment of debt. The creditor shall also provide a copy of the application made under subsection 1 to the debtor. क्रेडिटर ने डेटर को भी कॉपी देनी है। तो क्या डेटर जब अप्लाई करेगा तो डेटर भी क्रेडिटर को कॉपी देगा या नहीं देगा? क्रेडिटर तो डेटर को कॉपी दे रहा है, तो क्या डेटर जब अप्लाई करता है क्या वो भी कॉपी देगा किसी को? हाँ जी, इसका आंसर पता आपको कहाँ मिलेगा? इसका आपको आंसर मिलेगा एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में। तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं। फॉर्म ऑफ डिमांड नोटिस भी है तो सही, फॉर्म बी है इसमें, फॉर्म बी है आपका एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में ना, आप रूल्स में मिल जाएगा आपको, फॉर्म बी है फॉर्म ऑफ डिमांड नोटिस। और फॉर्म सी एप्लीकेशन बाई क्रेडिटर। ठीक है जी, चलिए 95 भी हो गया। 96 बोलता है इंटरिम मॉरेटोरियम। तो इंटरिम मॉरेटोरियम कमेंसेस ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो कोई भी एक्शन किसके अगेंस्ट में? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द डेट्स। An interim moratorium shall commence on the date of application in relation to all the debts and shall cease to have effect on the date of admission of such application. During the interim moratorium period, any legal action or proceeding pending in respect of any debt shall be deemed to have been stayed, and the creditor of the debtor shall not initiate any legal action or proceeding in respect of any debt. Where the application has been made in relation to a firm, the interim moratorium under subsection 1 shall operate against all the partners of the firm as on the date of the application. ठीक है, तो ये इंटरिम मोरेटोरियम। लेकिन इंटरिम मोरेटोरियम है इन रिलेशन टू ऑल द डेट्स। डेट के अलावा if there is any other proceeding, then there is no moratorium on that. Suppose some criminal proceedings are taking place against the debtor, ठीक है ना, so interim moratorium will not operate. ये इंटरिम मोरेटोरियम जो है ये डेटर पर लगेगा या क्रेडिटर पर भी लगेगा? हाँ जी, क्रेडिटर पर भी है, क्रेडिटर पर भी है। सर मॉनिटोरियम तो सबके सबके ऊपर लगेगा। सबके ऊपर कैसे? क्रेडिटर ऑफ द डेटर शैल नॉट इनिशिएट सर। नहीं, डेप्टर के ऊपर लगना चाहिए ना सर, बाकी के ऊपर क्यों लगेगा? बिल्कुल ठीक है, डेटर पर ही लगेगा। जिसने पैसे दे रहे हैं उसी पे तो लगेगा ना, जिसने पैसे लेने हैं उस पे थोड़ी मोरेटोरियम लग जाएगा कोई। क्रेडिटर थोड़ी ना सर सॉल्वेंट हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसके अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगी है उसी के लिए लगेगा ना। लिखा नहीं है इसमें, लेकिन क्या कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट, तो डेट के अगेंस्ट में, डेट जिसने देना है उसी के अगेंस्ट तो लगना है ना मोरेटोरियम। ठीक है, और अगर फर्म के अगेंस्ट में है तो इट शैल ऑपरेट अगेंस्ट ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म एज ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, 97 बोलता है अगर एप्लीकेशन आरपी के थ्रू लगी है देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल सीक कंफर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड रिगार्डिंग नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, 7 डेज, और ये दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पर 7 डेज और 7 डेज का पीरियड है। अदरवाइज नॉर्मली सब जगह क्या है, 7 डेज और 10 डेज का पीरियड है। यहां पर सिर्फ ऐसी एक ही सेक्शन है जहां पर 7 डेज और 7 डेज का पीरियड है कि 7 डेज में इसने करना है और 7 डेज में ही बोर्ड ने रिपोर्ट करना है इसको। ठीक है जी, बाकी सारी जगह आपका 7 डेज एंड 10 डेज का पीरियड है। And if no RP name has been given, the adjudicating authority shall write to the board and board will recommend. Section 98. Section 98 says creditor or debtor, they can seek change in the name of the RP
In this case, adjudicating authority will refer to the board within 7 days and board will recommend within 10 days. 99. RP will recommend acceptance or rejection of application within 10 days. Now, based on the application may be filed by the debtor or creditor. So 99 says submission of report by the RP. So RP shall examine the application referred to in section 94 or 95, as the case may be, within 10 days of his appointment, and submit a report to the adjudicating authority recommending for approval or rejection of the application. ठीक है? Where the application has been filed under section 95 मतलब through creditor, the resolution professional may require the debtor to prove repayment of the debt claimed as unpaid by the creditor. ठीक है? तो यहां पर दोबारा इसको चांस दे रहा है. अगर क्रेडिटर ने एप्लीकेशन फाइल की है तो resolution professional may require the debtor to prove repayment of the debt claimed as unpaid by the creditor by furnishing evidence of electronic transfer of the unpaid amount from the bank account of the debtor, evidence of encashment of a check issued by the debtor, or a signed acknowledgement by the creditor accepting receipt of dues. Where the debt for which an application will be filed by a creditor is registered with the information utility, the debtor shall not be entitled to dispute the validity of such debt. ठीक है? अगर डेट रजिस्टर्ड है आपका इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के साथ, देन द डेटर शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू dispute the validity of the debt. For the purposes of examining an application, the resolution professional may seek such further information or explanation in connection with the application as may be required from the debtor or the creditor or any other person who, in the opinion of the RP, may provide such information. The person from whom such information or explanation is sought under subsection 4 shall furnish such information or explanation within 7 days of receipt of the request. The resolution professional shall examine the application and ascertain that the application satisfies the requirement set out in section 94 or 95, that the applicant has provided information and given explanation sought by the RP. After examination of the application, he may recommend acceptance or rejection. Where the resolution professional finds that the debtor is eligible for a fresh start under chapter 2, यहाँ पर fresh start का भी एंगल देख लेगा इसमें कि अगर वो fresh start के लिए एलिजिबल है, the resolution professional shall submit a report recommending that the application by the debtor under section 94 be treated as an application under section 81 by the adjudicating authority. ठीक है? लेकिन सिर्फ 94 वाली एप्लीकेशन को ही एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट मान सकता है. ठीक है? 95 वाली को नहीं मान सकता. The resolution professional shall record the reasons for recommending the acceptance or rejection of the application in the report under subsection 7. The resolution professional shall give a copy of the report under subsection 7 to the debtor or the creditor as the case may be. यहां पर कॉपी दे रहा है, मतलब अगर 94 में डेटर ने फाइल की है तो क्रेडिटर को कॉपी दे देगा आरपी, इस रिपोर्ट की कॉपी. ठीक है? और अगर क्रेडिटर ने की है तो डेटर को. ये है सेक्शन 99. सेक्शन 100. सेक्शन 100 में क्या है? एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन. मैंने 3 सेक्शन को रेड कलर में हाईलाइट किया. सेक्शन 100, सेक्शन 115 एंड सेक्शन 118, बिकॉज दीज आर द सेक्शंस वेयर द क्रेडिटर or debtor is allowed to file an application for bankruptcy. ठीक है? In section 100, only the creditor is allowed to file for bankruptcy, and in section 115 and 118, either the debtor or the creditor can apply for bankruptcy order. Section 100, within 14 days of the report, adjudicating authority will accept or reject the application. But if the application is rejected by the adjudicating authority on the basis of a report submitted by the RP that the application was made with the intention to defraud his creditors or the RP, the order under subsection 1 shall record that the creditor is entitled to file for a bankruptcy order under chapter. तो यहीं पर ही सीधा रिपोर्ट के बाद ही सीधी बैंक्रप्सी शुरू हो जाएगी. मतलब कोई रीपेमेंट प्लान कुछ नहीं, इसका आगे का प्रोसेस चलेगा ही नहीं, यहीं से सीधा बैंक्रप्सी स्टार्ट. ठीक है? सेक्शन 101 बोलता है मॉरेटोरियम. एंड ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ द व्हेन द एप्लीकेशन इज एडमिटेड अंडर सेक्शन 100, ए मॉरेटोरियम शैल कमेंस इन रिलेशन टू ऑल द डेट्स. ठीक है? और ड्यूरिंग मॉरेटोरियम एनी पेंडिंग लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू हैव बीन स्टेड
Creditor shall not initiate any legal action or legal proceeding in respect of any debt. The debtor shall not transfer, alienate, encumber or dispose of any of his assets or legal rights. ठीक है. अब इसमें देखिए खास बात क्या है, जो सेक्शन 101 है ये वैसा ही है जैसा CIRP में मॉरेटोरियम होता है. तो इसमें ये है कि क्या क्रेडिटर जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई एक्शन ले सकता है, यहां पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा सिक्योर्ड क्रेडिटर भी. ठीक है. और डेटर भी कोई एसेट्स अपना ट्रांसफर, अलाइनेट, एनकम्बर या डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता. यहां पर कोई डिस्टिंक्शन नहीं है 101 में. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर. यहां ये नहीं बात करता कि भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई एक्शन ले लेगा या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं. Where an order admitting the application under section 96 has been made in relation to a firm, the moratorium under subsection 1 shall operate against all the partners of the firm. ठीक है. नाउ 102 बात करता है पब्लिक नोटिस की. ठीक है. The adjudicating authority shall issue a public notice within 7 days of passing of the order under section 100 inviting claims from all the creditors within 21 days of such issue. ठीक है. The notice under subsection 1 shall include details of the order admitting the application, particulars of the resolution personnel with whom the claims are to be registered, and the last date for submission of claims. अच्छा, ये क्या पेपर में पब्लिश करना है 102 वाला नोटिस? The answer is yes. So you have to issue it in, the notice shall be published in at least one English and one vernacular newspaper which is in circulation. ये लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट नहीं दिया हुआ, तो फॉर्मेट आप पब्लिक नोटिस वाला कोई भी उठा सकते. Affixed in the premises of the adjudicating authority and placed on the website of the adjudicating authority. तो सेक्शन 102. सेक्शन 103 बोलता है रजिस्टरिंग द क्लेम्स. ठीक है. द क्रेडिटर शैल रजिस्टर क्लेम्स with the resolution personnel by sending details of the claims by way of electronic communication or through courier, speed post और registered letter. तो यहां एक खास बात है कि यहां पर वर्ड कोरियर भी यूज किया गया है. ठीक है. In addition to the claims referred to in subsection 1, the creditor shall provide to the RP personal information and such particulars as may be prescribed. Section 103. Section 104, preparation of list of creditors. ठीक है. तो RP shall prepare the list of creditors with details within 30 days of the notice. ठीक है. और किस बेसिस पे होगा? Based on the information disclosed in the application filed by the debtor under section 94 or 95. ठीक है. And the claims received by the resolution personnel under section 102. The resolution personnel shall prepare the list mentioned in subsection 1 within 30 days from the date of the notice. Section 105 बोलता है रीपेमेंट प्लान के बारे में. The debtor shall prepare, क्योंकि डेटर ही बताएगा भाई ये पेमेंट कैसे करेगा. ठीक है. तो डेटर has to prepare the repayment plan with the RP, but there should be justification for the same. है ना. And RP will have authority to manage all assets and operations. The debtor shall prepare in consultation with the RP a repayment plan containing a proposal to the creditors for restructuring of his debts or affairs. The repayment plan may authorize or require the resolution personnel to carry on the debtor's business or trade on his behalf or in his name, or realize the assets of the debtor, or administer or dispose of any funds of the. अब यहां पर एक खास बात है कि यहां पर कस्टडी एंड कंट्रोल नहीं जा रहा उसके पास. आरपी के पास कस्टडी या कंट्रोल नहीं जा रहा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में. ठीक है. उसके बिहाफ पर वो बिजनेस कर सकता है. ठीक है. The repayment plan shall include the following, namely justification for preparation of such repayment plan and reasons on the basis of which the creditors may agree upon the plan, provision for payment of fees to the RP. ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि फीस का पेमेंट कहां पर लिखा हुआ है, तो ये यहां पर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस टू द RP. ठीक है. एक ही है इंपॉर्टेंट बात. एंड सच अदर मैटर्स एज में बी स्पेसिफाइड. तो 105 में कई बार 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता है. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु शैल प्रिपेयर द रीपेमेंट प्लान, डेटर इन कंसल्टेशन विद RP और RP इन कंसल्टेशन विद द डेटर. तो क्या आंसर होगा?
debtor with consultation with RP. Right, debtor in consultation with RP. Whether the RP can carry on the debtor's business? Yes, sir. Yes. So RP can carry on the debtor's business or trade on his behalf or in his name. ठीक है. Section 106. Section 106 बोलता है कि RP, the resolution professional shall submit the repayment plan under section 105 along with the report on such plan. तो ये दूसरी रिपोर्ट आ गई. पहली रिपोर्ट क्या थी? Whether to accept or reject the application under section 99. अब यहां पर 106 में कौन सी रिपोर्ट है? दिस इज द रिपोर्ट ऑन द रीपेमेंट प्लान along with his report on such plan to the adjudicating authority. कितने दिन में देना है? Within a period of 21 days from the last date of submission of claims under section 102. ठीक है, मतलब 30 डेज में तो आपको नोटिस देना है. नोटिस कितने पीरियड में देना है आपको? नोटिस देना है 7 डेज के अंदर. ठीक है, तो 7 डेज, ये तो T+7 हो गया. ठीक है, 30 डेज में आपके लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स हो गई. 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, तो T+7 + 30. और यहां पर ये कर रहा है 21 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम्स, तो T+7 + 30 + 21. 21 डेज में इसको रिपोर्ट देनी है from the last date of submission of claims. The report referred to in subsection 1 shall include that the repayment plan is in compliance with the provisions of any law. The repayment plan has a reasonable prospect of being approved and implemented, and there is a necessity of summoning a meeting of creditors if required to consider the repayment plan. तो यहां पर इसको क्या करना है? इसको ये देखना है कि भाई पेमेंट आपको जो क्रेडिटर्स की मीटिंग कॉल करनी है या नहीं करनी. ठीक है, ये नेसेसिटी ऑफ समनिंग ए मीटिंग, क्योंकि यहां पर क्या है, वी आर डीलिंग विद इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स. हो सकता है 2 या 3 क्रेडिटर ही हो सकता है उसको लगे कि मीटिंग की जरूरत ही नहीं. इसीलिए ये पॉइंट है यहाँ पर कि ही विल रिकॉर्ड द रीजंस प्रोवाइडेड दैट where the resolution professional recommends that a meeting of the creditors is not required to be summoned, reasons for the same shall be provided. ठीक है, the report referred to in subsection 2 shall also specify the date on which and the time and place at which the meeting should be held, if he is of the opinion that a meeting of the creditors should be summoned. For the purpose of subsection 3, the date on which the meeting is to be held shall be not less than 14 days and not more than 28 days from the date of submission of report. ठीक है, तो अभी कितने दिन हो गए आपके? 37, 58 हो चुके हैं. और 58 के बाद में कम यहां पर 14 डेज या नॉट मोर देन 28 days. The resolution professional shall consider the convenience of creditors in fixing the date and venue of the meeting. ठीक है, डेट और वेन्यू में वो ध्यान रखेगा. सपोज इट इज फॉलिंग ऑन अ हॉलीडे या रिलीजियस कोई फेस्टिवल है, या वेन्यू जो है इट इज नॉट फ्रेंडली फॉर द क्रेडिटर्स, तो उस केस में ही विल कंसिडर देयर कन्वीनियंस. शैल लिखा, शैल कंसिडर. ठीक है, 106 भी हो गया. 107 बोलता है कि क्रेडिटर्स मीटिंग नोटिस है 14 डेज विद रीपेमेंट प्लान एंड प्रॉक्सी फॉर्म्स. The resolution professional shall issue a notice calling the meeting of the creditors at least 14 days before the date fixed for such meeting. ठीक है, नोटिस देना है आपने कम से कम 14 दिन पहले. ठीक है, the resolution professional shall send the notice of the meeting to the list of creditors prepared under section 104. The notice sent under subsection 1 shall state the address of the adjudicating authority to which the repayment plan and report of the RP on the repayment plan has been submitted. ठीक है, and shall be accompanied by a copy of the repayment plan, a copy of the statement of affairs of the debtor, a copy of the said report of the RP, and forms for proxy voting. The proxy voting, including electronic proxy voting, shall take place in such manner and form as may be specified. ठीक है, तो ये प्रॉक्सी वोटिंग किस केस में चाहिए होती है आपको? व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ से NHUF या कंपनी, उस केस में. इफ द ओरिजिनल शेयर होल्डर इज नॉट कमिंग, इफ द ओरिजिनल क्रेडिटर इज नॉट कमिंग, किसी दूसरे को वो ऑथराइज करता है, तो उस केस में ये होगा. चलिए.
उसके बाद आगे देखते हैं 108। 108 बोलता है कि क्रेडिटर्स हैव टू अप्रूव द प्लान, रीपेमेंट प्लान, एंड आरपी शुड गेट द डेटर कंसेंट टू एनी चेंजेस सजेस्टेड बाय द क्रेडिटर्स। ठीक है भाई, डेटर को तो एग्री करना ही पड़ेगा। तो ये 108 है। 108 बोलता है कंडक्ट ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शंस 109, 110 and 111। In the meeting of the creditors may decide to approve, modify or reject the repayment plan. ठीक है। The resolution professional shall ensure that if modifications are suggested by the creditors, consent of the debtor shall be obtained for each modification। ये each modification important है। ठीक है। अब हो सकता है उसने बोला हो मैं 2 साल में पेमेंट करूंगा, ये बोले नहीं 1 साल में करो, है ना। वो बोलेगा जी मैं इतने % इंटरेस्ट दूंगा, वो बोले नहीं इतने % इंटरेस्ट दो, इस तरह से। या ईएमआई इतनी रहेगी, वो कह नहीं ईएमआई इतनी रहेगी। तो फॉर ईच मॉडिफिकेशन द कंसेंट ऑफ द डेटर हैज टू बी ऑब्टेन्ड, क्योंकि अल्टीमेटली पेमेंट तो उसी ने करना। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मे फॉर ए सफिशिएंट कॉज एडजर्न द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 7 days एट ए टाइम। ठीक है। अब यहां पर ये पेमेंट करनी है। ठीक है। तो जो पेमेंट करनी है, पेमेंट मान लीजिए एक आदमी की एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, तो क्या इसमें कोई मिनिमम कंडीशन है कि इतनी पेमेंट उसको करनी पड़ेगी? भाई इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल अपना रोटी पानी भी खाएगा, है कि नहीं? ऐसा तो है नहीं कि जितनी उसकी इनकम है सारी ही पेमेंट कर देगा। कोई ऐसी कंडीशन है क्या कितनी पेमेंट करनी है उसको? सर ऐसे स्पेसिफिक बॉन्डेज नहीं हो सकता? नहीं है, बिल्कुल है। रेगुलेशन नंबर 17 है। रेगुलेशन नंबर 17 बोलता है मिनिमम बजट कंटेंट्स ऑफ रीपेमेंट प्लान, मिनिमम बजट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान टू कवर द रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ द गारंटर एंड मेंबर्स ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली टू द एक्सटेंट दे आर डिपेंडेंट ऑन हिम, provided that at least 10% of the realizable income of the guarantor shall be utilized for repayment of debts। मतलब 10% तो कम से कम रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज करनी है, मतलब 90% तक पर्सनल रख सकते। अगर कम होगी तो नेचुरली ज्यादा रखेगा, है ना, ज्यादा होगी तो कम रखेगा। पर इसमें लिखा है कि 10% कम से कम उसको रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज करना। ठीक है जी। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि इस तरह से ना याद रहेगा आप। चलिए 1 ये हमारा सेक्शन चल रहा था, सेक्शन 107। ठीक है जी। 108 ये होगी, 108 हो गया। 109 बोलता है क्रेडिटर्स एंटाइटल्ड टू वोट इन मीटिंग इन प्रोपोर्शन टू देयर वोटिंग शेयर। A creditor shall be entitled to vote at every meeting of the creditors in respect of the repayment plan in accordance with the voting share assigned to him. The resolution professional shall determine the voting share to be assigned to each creditor in the manner specified by the board. A creditor shall not be entitled to vote in respect of a debt for an unliquidated amount। ठीक है, जो अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ है, लिक्विडेट नहीं हुआ, उसके लिए नहीं करेगा। A creditor shall not be entitled to vote in a meeting of the creditors if he is not a creditor mentioned in the list of creditors under section 104। ठीक है, और इज एन एसोसिएट ऑफ द डेटर। तो जो एसोसिएट है डेटर का वो भी वोट नहीं कर पाएगा, या फिर अगर उसका नाम लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में नहीं है तो वोट नहीं कर पाएगा, या फिर अगर कोई अनलिक्विडेटेड अमाउंट है उसके लिए वोट नहीं कर पाएगा। 110 बोलता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर का क्या राइट है ड्यूरिंग रीपेमेंट प्लान। राइट्स ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इन रिलेशन टू रीपेमेंट प्लान। Secured creditor shall be entitled to participate and vote in the meetings of the creditors। इसके पास भी राइट है। A secured creditor participating in the meeting of the creditors and voting in relation to the repayment plan shall forfeit his right to enforce the security during the period of the repayment plan in accordance with the terms of the repayment plan। ठीक है, अगर secured creditor वोट करता है, पार्टिसिपेट करता है इन द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स,
ठीक है, तो उसका क्या होगा, इट्स ही शैल फॉरफिट हिज राइट टू एनफोर्स द सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट प्लान। क्योंकि देखो रीपेमेंट प्लान से पहले तो वो एनफोर्स कर ही नहीं सकता, लेकिन जब रीपेमेंट प्लान स्टार्ट हो जाएगा, अगर इफ ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग देन ही कैन एनफोर्स हिज सिक्योरिटी, बट इफ ही हैज पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग देन he shall forfeit his right to enforce the security during the period of the repayment plan. ठीक है, where a secured creditor does not forfeit his right to enforce security, he shall submit an affidavit to the resolution tribunal at the meeting of the creditor stating that the right to vote exercised by the secured creditor is only in respect of the unsecured part of the debt and the estimated value of the unsecured part of the debt. ठीक है, in case a secured creditor participates in the voting on the repayment plan by submitting an affidavit under subsection 3, the secured and unsecured parts of the debt shall be treated as separate debts. The concurrence of the secured creditor shall be obtained if he does not participate in the voting on the repayment plan, but provision of the repayment plan affects his right to enforce the security. मतलब सपोज एक ही प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और जो रीपेमेंट प्लान जो दिया है इसने डेटर ने, वो कहता है कि I'll obtain some interim finance on that property, but that property is already mortgaged. So in that case, his concurrence shall be obtained. For the और purpose इसमें सर इसमें हाँ। भी कोई टाइमलाइन है कि उसको एफिडेविट देने का, क्योंकि उसमें रिलिंक्विश करने के लिए टाइम है, उसको ऑप्शन देना होता है ना लिक्विडेशन में कि उसको पर्टिकुलर टाइम में उसको लिंकिस करेगा या वो उसको हाँ इन्फोर्स ऐसा करेगा ना, प्रॉपर्टी। देखिए इसमें थोड़ा सा फर्क ये है, यहां पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप रीपेमेंट प्लान से पहले तो एनफोर्स कर ही नहीं सकते। जी सर। जब रीपेमेंट प्लान एक बार शुरू हो गया, देखिए सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या है, सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास दो ऑप्शन है। पहला, he may participate in the meeting on the repayment plan, he may not participate in the meeting on the repayment plan। ठीक है, दोनों में से दो ऑप्शन है। Yes. अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो वो तो फिर सिक्योरिटी को एनफोर्स कर ही नहीं पाएगा रीपेमेंट प्लान में। ठीक है, सपोज ही डज नॉट पार्टिसिपेट देन ही कैन एनफोर्स दिस सिक्योरिटी। सेक्शन 110 बोलता है इसके बारे में। मतलब यहां पर क्या है कि यहां ये रीपेमेंट प्लान है ना, तो रीपेमेंट प्लान में अगर उसने इफ ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड देन ही कैन एनफोर्स हिज सिक्योरिटी। For the purpose of this section, period of the repayment plan means the period from the date of the order passed under section 114 till the date on which the notice is given by the resolution professional under section 117 or report submitted by the RP under section 118 as the case may be। ठीक है, ये पीरियड क्या है, पीरियड ये है कि ये पीरियड ऑफ रीपेमेंट प्लान है, पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन। तो जब ऑर्डर पास होता है till the date on which the notice is given by the resolution professional under section 117, ठीक, और रिपोर्ट सबमिटेड अंडर सेक्शन 118। ये है सेक्शन। तो सर ये हाँ कॉल कॉल कैसा लेगा ये सिक्योर्ड क्रेडिटर कि मैं पार्टिसिपेट करूं नहीं करूं, रेजोल्यूशन प्लान के हिसाब से क्या वैल्यू निकल रहा देखिए है? ऐसा है ना, उसको ये देखना पड़ेगा, ये कॉल ऐसे ही लेगा जैसे CIRP में कॉल लेता है। अब वो ये देखेगा कि भाई मेरी पास जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू कितनी है। तो देयर इज एन असेसमेंट ना कि मैं रियलाइज करूंगा तो इतना तो मेरे को मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक तो है, वो एक कॉल तो लेना ही पड़ेगा ना, मार्केट वैल्यू या तो ले जो लेगा भी ना है। कॉल, कॉल तो ले लेगा अपने हिसाब से। भाई उसके पास पेपर ऑलरेडी हैं, he has already got the security of the property, he is a secured creditor, so he has got the property papers, so he can get them evaluated। So Lord is a judgment call once the plan is tabled for voting, then basically once the plan goes into action, whether he will participate or not. Actually he has to decide whether he has to participate in the meeting of the creditors on the repayment Right. plan or not. This is what is given in section 110. So if he participates, then he cannot enforce the security during the repayment plan. After the repayment plan is over, he can enforce the security। जैसा नॉर्मल देखो सिक्योर्ड क्रेडिटर जैसा ही है, सिक्योर्ड क्रेडिटर में भी क्या होता है, जो CIRP में क्या होता है, CIRP में भी
ड्यूरिंग CIRP पीरियड सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन नॉट एनफोर्स सिक्योरिटी। तो यहां पर भी यही है, जब तक रीपेमेंट प्लान पूरा नहीं हो जाता ही कैन नॉट एनफोर्स सिक्योरिटी। लेकिन यहां चेंज क्या है, यहां चेंज सिर्फ यही है कि अगर इफ ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स देन ही कैन एनफोर्स सिक्योरिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट प्लान। ये फर्क ठीक है सर। है ना जी। भाई देखिए ऐसा है, एक तो पहले तो पीरियड दिया ना इसको, रीपेमेंट प्लान के लिए पीरियड दे दिया, कितना 180 डेज का पीरियड दे दिया। अब अगर रीपेमेंट प्लान हो जाता है, रीपेमेंट, अब इसको पहले से ही अपना ही हैज टू मेक अ डिसीजन whether he wants to participate in the meeting of the creditors or not. In case he doesn't want to participate, then as soon as the repayment plan is in force, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट प्लान ही कैन एनफोर्स सिक्योरिटी। ठीक है, दो ही बातें हैं। और अगर वो पार्टिसिपेट करता है तो फिर उसको जब ये पीरियड ओवर होगा तब एक्सरसाइज कर पाएगा, दो ही बातें। ठीक है, सेक्शन 111 बोलता है रीपेमेंट प्लान टू बी अप्रूव्ड बाय मोर देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स। ठीक है, सेक्शन मोर देन 3/4 बोला, खाली 75 से भी नहीं होगा, मोर देन 3/4। 112 बोलता है RP टू प्रिपेयर डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ ईच क्रेडिटर कमिटी मीटिंग। 113 कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड टू द डेटर ऑल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग दोज एब्सेंस एंड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सेक्शन 114 बोलता है A may approve repayment plans based on the RP recommendation and its examination। ठीक है, 115 adjudicating authority approval starts the repayment plan। तो once a repayment plan is approved by the adjudicating authority, so repayment plan starts and rejection entitles the debtor or creditor to file for bankruptcy। Section 116 RP will provide notice of repayment completion within 14 days and provide detailed reports with summary of receipts and payments। Section 118 in case the repayment plan has started but it ends prematurely, पूरा नहीं हो पाया, if not fully implemented, then RP will report the details, debtor or creditor can apply for bankruptcy order। Section 119 बोलता है discharge order on recommendation of RP by the adjudicating authority। and section 120 बोलता है RP to perform all duties within the code of conduct। तो ये हमारा है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के साथ में थोड़े से ना इसके रेगुलेशंस भी देख लेते हैं, क्योंकि रेगुलेशन से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसमें माइंड में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, एक तो क्वेश्चन आपका ये आ रहा है कि भाई सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या करेगा। देखिए ऐसा है, सबसे पहला क्वेश्चन, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या क्लेम फाइल करेगा अपना? पहला क्वेश्चन तो यही है। पब्लिक नोटिस आ गया, उससे भी पहले चलो, सिक्योर्ड क्रेडिटर क्या एप्लीकेशन फॉर बैंक्रप्सी फाइल कर सकता है? एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी 95 में। भाई अगर आपसे पूछता है वेदर द सिक्योर्ड क्रेडिटर कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंसॉल्वेंसी अंडर सेक्शन 95, तो क्या आंसर हो? तो उसका ऑप्शन ना कर सकते हो तो बिल्कुल कर सकते। हाँ, देखो होता क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा वो चेंज कर देता है ना, तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है, यार क्रेडिटर लिखा है, सिक्योर्ड क्रेडिटर तो लिखा नहीं। तो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, कोई भी हो फाइल कर सकता है 95। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, वेदर ही विल फाइल हिज क्लेम, इसको क्लेम फाइल करना है या नहीं करना है? करना सर, बिल्कुल करेगा सर, क्लेम बिल्कुल तो फाइल करेगा, करना है। बिल्कुल करेगा। ठीक है, अच्छा अब क्लेम इसने फाइल कर दिया, क्लेम फाइल करने के बाद में आप ये बताइए कि क्रेडिटर की मीटिंग हो रही है। अब क्रेडिटर की मीटिंग में इसको जाना है या नहीं जाना, क्या करेगा ये? और वो कॉल तो वो ही ले सकता है। राइट, सो ही हैज टू टेक दैट कॉल। ठीक है, वो सेक्शन 110 बोलता है, सेक्शन 110 बोलता है राइट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर इन रिलेशन टू द रीपेमेंट प्लान। और सेक्शन 110 सबसेक्शन 2 बोलता है
A secured creditor shall be entitled to participate and vote in the meeting of the creditors. Section 1101. Section 1102 बोलता है a secured creditor participating in the meeting of the creditors and voting in relation to the repayment plan. अगर वो वोट कर रहा है तो क्या होगा? He shall forfeit his right to enforce this security during the period of the repayment plan. तो फिर जब तक रीपेमेंट प्लान चलेगा तब तक वो अपनी सिक्योरिटी को एनफोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा, अब आप एक सवाल और बता दो, क्योंकि 111 में क्या बोला? मोर देन 3/4। अगर मान लीजिए एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, ठीक है, अब सिक्योर्ड क्रेडिटर तो मीटिंग में आया ही नहीं, तो क्या जब 3/4 काउंट करेंगे तो क्या उसका वोट भी काउंट करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं सर। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या बोलता है वो बोलता है प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन। तो जो प्रेजेंट है आइदर इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग, उन्हीं का ही वोट काउंट कर रहे हैं। ठीक है। अब हम थोड़े से इसके रेगुलेशंस देख लेते हैं। सर इसके रेगुलेशंस बुक में तो है ही नहीं, बुक में कहाँ? क्यों नहीं है? मेरे को इसमें कहीं। कौन सी बुक है आपके पास? सर एक कमर्शियल लॉ पब्लिशर करके। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। जी सर। तो पादुका में कौन सा सर? ये आप ना पेज नंबर इसके आसपास देख लो, 735 खोलना एक बार। 735। हाँ, कौन सा एडिशन है आपके पास? 23 का है सर। हाँ, तो 735 पेज नंबर खोलो। नहीं सर इसमें नहीं है बुक में। हम्म। 735 पेज ही नहीं है इसमें। पेज ही नहीं है? नहीं सर 712 तक है, उसके बाद में फिर वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगा? तो ये बुक ही कोई दूसरी है आपके पास? आपके बेयर कोड नहीं है, कोई और बुक है आपके पास? यही बुक। है? बुक तो यही है सर वो उसकी। नहीं 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 नहीं। ठीक है सर। आप मेरे को इसका कवर दिखाओ एक बार। सर कवर दिखा। हाँ, तो ये तो भाई जी शेखर की बुक है ना, ये बेयर कोड थोड़ी है। दिस इज नॉट बेयर अच्छा। कोड। ओके। ये बेयर कोड है ही नहीं। ये देखो बेयर कोड ये है, किसी ये है बेयर कोड। अच्छा सर। चाहे बुक कोई भी हो, होगा उसमें दूसरे वॉल्यूम में होगा ना। ये वॉल्यूम 1 है ना आपके पास, जी सर। इसके वॉल्यूम 2 में देखो। ऐसा तो नहीं हो सकता अगर ना हो। हाँ, ये है कि उस तरह से नहीं होगा, बट होगा तो सही। ये रेगुलेशंस आ गए आपके, इंसॉल्वेंसी प्रोसेस रेगुलेशंस। ठीक है जी। ये नजर आ रहा होगा आपको?
जी सर। एसोसिएट क्या है? एसोसिएट तो डेफिनेशन पहले भी पढ़ाई है आपने, 79 में भी पढ़ाई है, ठीक है ना? तो ये रेगुलेशंस में दोबारा इन्होंने डेफिनेशन दे रखा है। एसोसिएट in relation to a creditor, a resolution professional or professionals, as the case may be, shall have the same meaning as assigned to it in relation to a debtor. तो आपने जो डेटर का एसोसिएट है वही क्रेडिटर के एसोसिएट की बात है, ठीक है? क्रेडिटर हो, आरपी का एसोसिएट हो, या प्रोफेशनल एंगेज्ड बाय आरपी, तो आपको डेफिनेशन कहां से देखनी है? डेफिनेशन देखनी है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 79। और वहां पर क्या बोलता है एसोसिएट? एसोसिएट में इमीडिएट फैमिली है ना, जिसमें डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है, स्पाउस है, या फिर और भी बहुत सारे रिलेशंस, जैसे पार्टनर है, पार्टनर के रिलेटिव है, वो सब। क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर शैल सबमिट इट्स क्लेम इन फॉर्म बी, ठीक है? The resolution professional shall verify each claim as soon as it is received and prepare a list of creditors under subsection 1 of section 104 within 30 days from the date of the public notice, ठीक है? चलिए, ट्रांसफर ऑफ डेट, इसमें कोई खास बात नहीं है ना? तो इसमें क्या है? टर्म्स ऑफ असाइनमेंट और ट्रांसफर एंड द आइडेंटिटी डिटेल्स ऑफ द असाइनी और ट्रांसफर। लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 104 shall contain the names of creditors, amount claimed, amount admitted and security interest, ठीक है? The resolution professional shall make the list of creditors available for inspection by the persons who submitted claim। ये सब वही है जैसे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स में होता है ना, सेम चीज है। सर्वे कॉपी ऑफ द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स टू द गारंटर, ठीक है? मेक अवेलेबल द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स ऑन द वेबसाइट इफ एनी ऑफ द गारंटर। प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स एट द मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स। File a certified copy of the list of creditors with the adjudicating authority along with the repayment plan. Statement of affairs. The resolution professional shall prepare a statement of affairs of the guarantor for the purpose of clause B of subsection 3 of section 107. The statement of affairs shall include the following information of the guarantor: assets and liabilities for the preceding 3 financial years and the current financial year. अब इसमें ना वो इस तरह से सवाल बना सकता है कि which of the following information need not be submitted while preparing the statement of affairs of the guarantor। इनमें से इसके अलावा कोई आपको दे देगा ऑप्शन। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन इसमें होनी चाहिए? एसेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स एंड द करंट फाइनेंशियल ईयर, डिटेल्स ऑफ द एक्सक्लूडेड एसेट्स एंड एक्सक्लूडेड डेट, income statement for the preceding 3 financial years and the current financial year, income tax return filed by the guarantor if any for the preceding 3 financial years, creditor wise amount due broken up into secured and unsecured debts for the preceding 3 financial years, details of debt owed by the guarantor to his associates for the preceding 3 financial years, guarantees given in relation to any of his debts and whether any of the guarantors is an associate of the guarantor, and details of the financial statements for the business owned by the guarantor or of the firm in which he is a partner, as the case may be, for the preceding 3 financial years if applicable, ठीक है? तो ये सारी चीजें इसको देनी है। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग के बारे में देख लेते हैं, रेगुलेशन नंबर 11 है। पहली मीटिंग कब करनी है? पहली मीटिंग होनी है आपकी, वो लिखा है ना, नॉट लेस देन 14 days, नॉट मोर देन 28 days, by giving such notice as decided by the creditors, which shall not be less than 48 hours। तो वहां पर कितना लिखा है? 14 days का नोटिस है 107 में। The resolution professional shall convene a meeting of creditors on a request by creditors having 33%. Notice under this regulation shall be served on every participant at the address provided to the resolution professional। अच्छा, ये भी है, unless otherwise provided in this code, any decision of the creditors
shall require approval of more than 50% of voting share of the creditors who voted. ठीक है, तो जो भी नॉर्मल डिसीजन है वो मोर देन 50% से लेने. Contents of the notice for a meeting. The notice convening the meeting of creditors shall inform the participants of the venue, the time, the date of the meeting, and the options available to participants to attend the meeting either in person, through video conferencing, or through a proxy. And creditors to cast vote in person, through a proxy, by electronic means, or by electronic proxy. The notice of the meeting shall carry the agenda, which shall include the following: list of matters to be discussed, list of issues to be voted upon. Relevant documents. If an option to attend the meeting through video conferencing is made available to the participants, the notice of the meeting shall state the process. ये सारी चीजें, ठीक है, ये सब जैसे सी वो अपना होता है ना CIRP में, वही सेम चीज है. उसके बाद में कोरम है. कोरम कितना है? वही 33% एटलीस्ट. कंडक्ट ऑफ द मीटिंग, ये सब CIRP से कॉपीड है. वोटिंग बाय क्रेडिटर्स. The resolution professional shall take a vote of the creditors present in the meeting on any item listed for voting after discussion on the same. Circulation होना है within 48 hours. Voting by proxy. A creditor who is entitled to vote at a meeting of creditors shall be entitled to appoint an individual who shall not be an associate of the guarantor as a proxy to attend and vote on its behalf. ठीक है, तो ये भी एक है कि प्रॉक्सी जो है, प्रॉक्सी शुड नॉट बी ए एसोसिएट ऑफ द गारंटर. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना. फॉर द पर्पज ऑफ सब रेगुलेशन 1, a creditor shall deliver form C duly completed to the resolution professional at least 24 hours prior to the meeting of creditors. तो क्रेडिटर को डिलीवर करना है फॉर्म C. फॉर्म C क्या? प्रॉक्सी फॉर्म. एंड ए प्रॉक्सी में वोट बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑन बिहाफ ऑफ द क्रेडिटर्स. ठीक है. कंटेंट्स ऑफ द रीपेमेंट प्लान. The repayment plan shall provide the following: the terms of the repayment plan and its implementation schedule, including the amounts to be repaid and the dates of repayment to creditors. रीपेमेंट प्लान में ये चीजें होनी है. क्या क्या? एक तो टर्म ऑफ द रीपेमेंट प्लान, भाई 6 महीने, साल, 2 साल, कितना, और उसका इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल क्या होगा, इंक्लूडिंग द अमाउंट्स टू बी रीपेड एंड डेट्स ऑफ रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स. कब कब पेमेंट करेगा, ये सारी बातें रीपेमेंट प्लान में देनी है. The source of funds that will be used to pay the resolution process cost, and that such payment shall be made in priority over any creditor. Minimum budget for the duration of the repayment plan to cover the reasonable expenses of the guarantor and members of his immediate family to the extent they are dependent on him, provided that at least 10% of the realizable income of the guarantor shall be utilized for repayment of debts. ठीक है, पहले भी डिस्कस किया. देन फाइनेंसिंग रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रीपेमेंट प्लान. कई बार वो कहता है कि भाई मैं तो फाइनेंस करवाऊंगा कहीं से या लोन लूंगा, जो सब बातें. इफ द गारंटर हैज एनी बिजनेस, द मैनर इन विच इट इज प्रपोज्ड टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रीपेमेंट प्लान एंड द रोल ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, द मैनर इन विच फंड्स हेल्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ द रीपेमेंट प्लान इन्वेस्टेड और अदरवाइज डेल्ट विद पेंडिंग रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स. ठीक है. The functions which are to be undertaken by the RP, including supervision and implementation of the repayment plan, variation of onerous terms of a contract or transaction involving the guarantor, details of the excluded assets and excluded debts of the guarantor, terms and conditions for the discharge of the guarantor. The repayment plan may provide for the following: transfer or sale of all part of the assets, administration or disposal of any funds, satisfaction or modification of any security interest, रिडक्शन इन द अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स. ठीक है, ये सारा वो जो रेजोल्यूशन प्लान है ना, वो वहीं से कॉपी है. क्यूरिंग और वेविंग ऑफ एनी ब्रीच, मॉडिफिकेशन, पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ द गारंटर टू बी यूज्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ द डेट एंड द मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ द गारंटर, ये दे रहा है. ठीक है. मैनर इन विच फंड्स हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स एंड नॉट सो रिपेड एट द एंड ऑफ द रीपेमेंट प्लान आर टू बी डेल्ट विद.
Purchase of assets by certain persons. The following persons shall not purchase or acquire any interest in the property of the guarantor directly or indirectly without permission of the adjudicating authority. ठीक है? The RP or any partner director of the IP in which the RP is a partner or director, any professional appointed, process, any creditor, ठीक है? Any company where the guarantor or creditor is a promoter or director. एक ये फॉर द रेजोल्यूशन, एक्चुअली प्रोसेस इसके साथ है, ये यहाँ प्रोसेस इसके साथ है, रेजोल्यूशन प्रोसेस. Any creditor, any company where the guarantor or creditor is a promoter or director, any associate of the guarantor, creditor or resolution professional. तो ये लोग नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. ठीक है? The adjudicating authority may set aside purchase or acquisition made contrary to the provisions of this regulation and may make such order as it may deem fit. Regulation 19, filing with the adjudicating authority. The resolution professional shall file the repayment plan as approved by the creditors along with the report on or before the completion of 120 days. तो इसके लिए कितना दिन है? 120 days है टोटल. ठीक है? From the resolution process commencement date, और total period वैसे इसका 180 है. The resolution professional shall provide the copies of the documents filed with the adjudicating authority under sub regulation 1 to the guarantor and the creditors within 3 days from the date of such filing. Breach of repayment plan. अब ब्रीच में क्या है? टेम्परेरी ब्रीच है और परमानेंट ब्रीच है, दो तरह के हैं इसमें ब्रीच. If in the opinion of the resolution professional, the guarantor has failed in implementation of the repayment plan, the resolution professional shall within 3 days of knowledge of such failure issue a notice to the guarantor identifying the failure and requiring him within 15 days of receipt of the notice to address such failure if it can be addressed or provide an explanation for the failure. ठीक है? 3 दिन के अंदर जब उसको पता चलेगा कि फेलियर हो गया तो वो नोटिस इशू करेगा गारंटर को आइडेंटिफाइंग द फेलियर एंड रिक्वायरिंग हिम विद इन 15 डेज टू एड्रेस सच फेलियर इफ इट कैन बी एड्रेस्ड और प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द फेलियर. If the guarantor within the period specified under sub regulation 1 addresses the failure in implementation or provides a satisfactory explanation of such failure, the resolution professional shall report the failure to creditors within 7 days of the date of the failure addressed or explanation provided for such failure. ठीक है? In cases not covered under sub regulation 2, the resolution professional may apply to the adjudicating authority under subsection 2 of section 116 for directions if he is of the opinion that the failure will affect the implementation of the repayment plan. Application for discharge order. The resolution professional shall, for the purpose of discharge order, file an application along with copies of the notice and report under section 117 to the adjudicating authority under section 119. And on consideration of the notice and the report under subsection 1 of section 117, the adjudicating authority may pass the discharge order. नॉन कोऑपरेशन बाय गारंटर. ठीक है? तो उस केस में क्या होगा? द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू दिस इफेक्ट एंड फाइल द सेम विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर एप्रोप्रिएट डायरेक्शंस. उसके बाद में फिर आपके पास ये फॉर्म आ जाते होंगे मेरे ख्याल. ये फॉर्म ही है रिटर्न कॉन्सेंट. तो इतने ही इसमें रेगुलेशंस. रेगुलेशंस के बाद में इसके एक बार वो भी देख लेते हैं. एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स. ये एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स है. इसमें भी मोटी मोटी बातें देख लेते हैं.
एक तो रिलेटिव्स की बात करता है, तो रिलेटिव कहां से देखने हैं आपको, सेक्शन 524 कैपिटल ए। एक्सक्लूडेड एसेट्स, एक्सक्लूडेड एसेट्स में क्या है, एक तो जो अनएनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं उसमें वैल्यू दे रखी है 1 लाख, शेल नॉट एक्सीड 1। सिंगल ड्वेलिंग यूनिट, अर्बन एरिया 20 लाख, रूरल एरिया 10 लाख। ठीक है। एप्लीकेशन बाय गारंटर फॉर्म ए along with application fees of 2000 rupees। और गारंटर ने कॉपी किसको देनी है, टू एवरी फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड द कॉर्पोरेट डेटर फॉर हुम द गारंटर इज ए पर्सनल गारंटर। ठीक है। एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने अप्लाई करना है फॉर्म बी के अंदर। ए डिमांड, अच्छा डिमांड नोटिस आपका है फॉर्म बी के अंदर और एप्लीकेशन है फॉर्म सी। ए डिमांड नोटिस अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 95 shall be served on the guarantor demanding payment of the amount of default in form B. An application shall be submitted in form C along with the fees of 2000 rupees। और क्रेडिटर ने कॉपी किसको देनी है, गारंटर को एंड द कॉर्पोरेट डेटर फॉर हुम द गारंटर इज ए पर्सनल गारंटर। In case of joint application, the creditors may nominate one amongst themselves to act on behalf of all the creditors। उसके बाद कंफर्मेशन और नॉमिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इसमें कोई खास बात नहीं है। कॉपी ऑफ एप्लीकेशन, इसमें लिखा है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन में the applicant shall provide a copy of the application filed under subsection 1 of section 94 or subsection 1 of section 95 as the case may be, if not provided earlier to the RP within 3 days of his appointment। ठीक है, and to the board for its record। विड्रॉल क्या अलाउड है, the adjudicating authority may permit withdrawal of the application as the case may be before its admission on a request made by the applicant, and after its admission on the request made by the applicant if 90% of the creditors agree to such withdrawal। ठीक है। And an application for withdrawal shall be made in form D। तो ये फॉर्म डी के अंदर है, ये फिर आपका फॉर्म है, ये सारी डिटेल्स है इसमें। ये फॉर्म बी हो गया, ये फॉर्म सी हो गया। फॉर्म सी एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर है, और फिर इसके बाद फॉर्म डी है आपका विड्रॉल के लिए। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस तो इतना ही है। अब एक बार एक काम और करते हैं कि इसमें ना एक केस स्टडी देख लेते हैं इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पर। ये देखिए, इसमें 3 पार्टनर हैं। अमित लिविंग इन दिल्ली, बिपिन लिविंग इन कोलकाता एंड चंचल लिविंग इन मुंबई। दे आर पार्टनर्स इन एबीसी एंड कंपनी having its registered office at Delhi and branches in Kolkata and Mumbai। The firm had taken a loan of 20 lakhs from PNB Delhi। On default, PNB gave a notice to repay the loan within 14 days of service of notice of demand, to which the firm partners have give no response। ठीक है, 14 दिन का नोटिस दिया उन्होंने और उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। PNB is now contemplating filing an insolvency petition under IBC against ABC and company, presuming that sections pertaining to individual insolvency have been enforced। Please answer the following questions। इसमें एक बात हमें ध्यान रखनी है कि क्या है, फर्म ने लोन लिया है, ठीक है, तो एप्लीकेशन
कहां पर फाइल होगी आपकी? सर डीआरटी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ डीआरटी दिल्ली बिजनेस। सर। हाँ, तो डीआरटी सेक्शन 179 इसकी बात करता है। अगर हम सेक्शन 179 देखें, देखो गारंटर में तो जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पर फाइल होगी, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है, गारंटर तो है नहीं है, तो आपको सेक्शन 179 से गवर्न होगा। 179 ये बोलता है कि adjudicating authority in relation to insolvency matters of individuals and firms shall be the DRT having territorial jurisdiction over the place where the individual debtor actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain and can entertain an application under this code regarding such person। ठीक है जी, चलिए। तो जहां इसका डीआरटी दिल्ली में हो जाएगा। तो आंसर इसका बी होना चाहिए फिर तो, है ना? सी है सर इसका आंसर। है, सी लिखा हुआ है सर। वो सी पता क्यों लिखा है? सी इसीलिए लिखा है कि वो ये कहता है कि जहां पर इंडिविजुअल डेटर रिजाइड करता है। अब डेटर रिजाइड तो बेसिकली तो क्या है कि फर्म्स की बात भी कर रहा है ना वो, तो फर्म में वो पार्टनर के रेजिडेंस से भी ले रहा है। इस तो कहीं पर भी करेगा तो एडमिट हो जाएगी, दिल्ली कलकत्ता मुंबई में। तो सी राइट आंसर है सर, ये कहीं पे भी फाइल कर सकता है ना। हाँ कर सकता है, हाँ। ये आपको और भी मिलती है ना, इसके इसके लिए स्ट्रेंथ और भी एक सेक्शन से मिलती है। वो सेक्शन कहां पर है अभी जो हम पढ़ रहे थे? सेक्शन 94 पढ़ रहे थे हम। नहीं, जहां पर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन की बात कर रहा था। 95 क्लॉज सी, क्लॉज 3। हाँ, वो बोला when an application has been made against one partner in a firm, any other application against another partner in the same firm shall be presented in or transferred to the adjudicating authority in which the first mentioned application is pending। तो यहां से भी आपको स्ट्रेंथ मिलती है 95(3) से अलॉन्ग विद 179। वो किसी भी पार्टनर के केस में फाइल कर सकता है जहां पर वो पार्टनर रिजाइड करता है। अच्छा, there are some other creditors as well whose amount is due, however their amount is not yet due। ठीक है, अमाउंट तो है उनका, बट अमाउंट अभी ड्यू नहीं है, पेबल नहीं है। अभी हम नॉट येट ड्यू की बजाय इसको पेबल कर दें, नॉट येट ड्यू एंड पेबल, ऐसे कर देते हैं। तो क्या ये क्रेडिटर ज्वाइन कर सकते हैं? दे कैन नॉट ज्वाइन। ठीक है, आपका ड्यू एंड पेबल होना चाहिए। डिफॉल्ट भी जरूरी है ना, अगर डिफॉल्ट ही नहीं है, अगर ड्यू ही नहीं है तो डिफॉल्ट तो होगा ही नहीं ना फिर आपका। वो क्या है, वो अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं लेकिन एप्लीकेशन टू इनिशिएट नहीं कर सकते। दोनों में फर्क है ना। A petition against one partner, Bipin, is already pending in DRT Kolkata। ठीक है, नाउ पीएनबी has moved a petition in DRT Delhi। In view of this, which of the following options is correct? वो 95 सबसेक्शन 3 इसका आंसर देगा। सर पिन शेयर नहीं किया गुप्ता सर। हाँ जी, स्क्रीन शेयर नहीं किया। स्क्रीन शेयर नहीं किया। नहीं नहीं है सर, स्क्रीन शेयर है सर। नहीं सर, का ही फोटो दिख रहा है मुझे, वो कॉर्नर में चला गया। स्क्रीन है, स्क्रीन है। नहीं, आप उसको उसको वो करिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ। हाँ हाँ, नव इट इज ओके सर। वो कई बार हो जाता है।
चलिए अब नजर आ रहा ना, ठीक है। तो पहले एक डीआरटी कलकत्ता में फाइल्ड है, अब डीआरटी दिल्ली में हो गया, तो अब क्या होगा? कलकत्ता वाली दिल्ली जाएगी, दिल्ली वाली कलकत्ता जाएगी, क्या होगा? दिल्ली वाले करता जाएगी सर, जो फर्स्ट हुआ वहीं जाएगा। हम्म, जहां पर फर्स्ट वाली पेंडिंग है, ठीक है। जी सर। सेक्शन 95 सब सेक्शन 3, हम्म। दिल्ली वाली कलकत्ता चली जाएगी। Suppose PNB decides to file the application singly. In view of this, which of the following options is correct? क्या होगा इसमें? आरपी का नाम देना तो जरूरी है नहीं, है ना? नहीं सर। तो PNB कैन फाइल द एप्लीकेशन विदाउट नेमिंग द आरपी, आंसर बी हो जाएगा। हु शैल बेयर द फीस ऑफ द आरपी? आरपी की फीस कौन बेयर करेगा? एप्लीकेंट। सर वो रीपेमेंट का पार्ट रहेगा सर, किसका पार्ट रहेगा? वो रीपेमेंट प्लान। रीपेमेंट में, राइट। हाँ। सेक्शन 1053B जी सर। टॉक्स ऑफ दिस। तो सेक्शन 1053B क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ फीस फॉर दी टू दी आरपी। भाई उसकी फीस का पेमेंट कैसे होगा? ये रिपेमेंट प्लान में देगा ये। क्योंकि देखो ना, 1,000 रुपये ही नहीं दे पा रहा ये, तभी तो एप्लीकेशन हम्म। फाइल हुई, तो इसलिए फीस भी नहीं दे पाएगा नेचुरली। तो रीपेमेंट प्लान में बताएगा मैं कैसे फीस दूंगा। और अल्टीमेटली तो एबीसी एंड कंपनी ही बेयर करेगी, है ना? सपोज द एप्लीकेशन फाइल्ड बाय पीएनबी इज एडमिटेड बाय डीआरटी कलकत्ता। इन व्यू ऑफ दिस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? Any debt. Non-credible legal action or proceeding against the firm or any partner in suit of debt. Decredit. हम्म, अब डी और सी में फर्क क्या है? बस firm सर और उसमें partner एनी any पार्टनर partner भी की लिखा है, कोई उसमें ओनली फर्म लिखा हाँ, है। तो फर्म के अगेंस्ट भी नहीं हो सकती और पार्टनर के अगेंस्ट भी नहीं, पार्टनर। है ना? और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट है, ठीक है। नाउ पीएनबी filed the application and Ramlal was appointed as the resolution postal. In view of this, which of the following options is correct? मतलब रामलाल shall submit a report, रामलाल shall endeavor to submit a report, रामलाल may record the reasons, क्या होगा? Shall submit है सर। तो आंसर हमारे को दिया हुआ है सेक्शन 99 में। सेक्शन 99 अगर हम पढ़ें तो वो ये कहता है, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall examine the application as the case may be within 10 days and submit a report to the adjudicating authority recommending for approval or rejection of the application। ठीक है जी, चलिए। Which of the following statements is incorrect regarding public notice? ये पब्लिक नोटिस जो है डेटर के प्रेमिसेस में लगाना है क्या? डेटर के प्रेमिसेस में लगाना, इसके बारे में सेक्शन 102 बोलता है कहां कहां लगाना है ये। देखो, प्रेमिसेस में लगाना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, एंड प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है जी, तो ये है। तो कहां कहां लगाना है? प्रेमिसेस ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Which of the following statements is incorrect or incomplete regarding claims to be filed by the creditors? Claims to be filed by the creditors.
देखिए इसमें मेन बात पता क्या है, सबसे पहली बात तो वर्ड क्या लिखा है, रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर में तो बी ही बचता है। अब बी में और देख लेते हैं डिटेल्स कैसे देनी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोरियर, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड लेटर। तो इसमें स्पीड पोस्ट नहीं दिया इसने, तो बी भी गलत हो गया इसका। ए में क्या गलती है, ए में गलती ये है कि इसने लॉज लिख दिया जबकि वर्ड रजिस्टर है। बी में क्या गलती है, बी में ये है कि स्पीड पोस्ट ने लिखा। सी में क्या गलती है, सी में लिख दिया फाइल जबकि रजिस्टर होना चाहिए था। बाकी सारी चीजें ठीक है, तो ये सारे के सारे ही गलत है, इनकम्प्लीट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। रीपेमेंट प्लान किसने तैयार करना है, Debtor in consultation with RP. हाँ बिल्कुल सही है। तो कौन सी गलत हो गई इसमें स्टेटमेंट, A. ये गलत, ठीक है। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, you have been appointed as an RP and have to conduct a meeting of the creditors. In view of this, please answer the following questions. Whether it is mandatory for the RP to convene a meeting? मीटिंग कन्वीन करना जरूरी है क्या नहीं सर। क्रेडिटर्स की? जरूरी नहीं है सर। जरूरी नहीं है, बट in case he feels so, he has to record the reasons. No, In right. case he decides not to call the meeting, है ना, सेक्शन 106(2)(c). नेक्स्ट देखते हैं, whether the date, time and place of the meeting is to be specified in the report of RP to A। जो आरपी अपनी रिपोर्ट देता है ऑन रीपेमेंट प्लान, क्या उसके अंदर ये चीज देनी जरूरी है? Yes. 106 में दे रहा है, Hmm. बिल्कुल देना है इसको। और डेट कब होनी है मीटिंग? 14 days, not less than 14. 14 हाँ, नॉट लेस देन 14 days एंड नॉट मोर देन 20, मैक्सिमम भी है, नॉट मोर देन 28 days फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द रिपोर्ट। नोटिस ऑफ मीटिंग किसको किसको देना है? जो भी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स Creditors को, हाँ. which is prepared under section 104 and it has to be given at least 14 days before the meeting. What should be the attachments to the notice of meeting? Attachment क्या क्या अटैच करना है इसमें? कॉपी ऑफ रीपेमेंट प्लान लगाना है क्या? Yes. हाँ। कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द डेटर, Yes. कॉपी ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द आरपी, Yes. फॉर्म फॉर प्रॉक्सी वोटिंग। Yes. हाँ, तो ये सारी चीजें इसको लगानी है, ठीक है। A creditor expresses his inability to attend the meeting due to religious festival। उसने बोला भाई हमारा रिलीजियस फेस्टिवल है, मान लो ईद है, या कोई नॉन मोटरेबल रोड है, भाई मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मोटरेबल रोड नहीं है, तो इज इट ऑब्लिगेटरी टू कंसीडर द कन्वीनियंस ऑफ द क्रेडिटर्स? यस सर। यस। तो कन्वीनियंस ऑफ 1064 क्रेडिटर्स। हाँ 1064B ऐसा बोलता है कि ही शैल, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल कंसीडर द कन्वीनियंस। There was a construction contract for some of the work done. The amount has not yet been billed or accounted for in the books. Whether for such dues the creditor shall be assigned voting share? इसके लिए वोटिंग नो शेयर सर। मिलेगा नहीं मिलेगा? नो सर। नहीं नहीं, मिलेगा। अभी नहीं मिलेगा सर। हाँ, क्योंकि अभी अनलिक्विडेड। अनलिक्विडेटेड। हाँ. 1093, a creditor shall not be entitled to vote in respect of a debt for an unliquidated amount. Concurrence of secured creditor, whether required in case repayment plan prejudicially affects his interest. A repayment plan submitted by the debtor contains a provision that the security given to the secured creditor is 5 times the amount due to such secured creditor। ठीक है, मतलब ये है कि जो अमाउंट उससे ले रखा है सिक्योर्ड क्रेडिटर से, मान लीजिए 10 लाख से ले रखा है, और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो है 70 लाख, वो कहता जी 5 टाइम्स से भी ज्यादा है। डेटर प्रपोजेस टू रेज एडिशनल लोन बाय क्रिएटिंग ए पेरी पैसू चार्ज ऑन द सिक्योरिटी। क्या वो कर सकता है? इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 110 सबसेक्शन 5 में। वो कहता है द कंकरेंस ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी ऑब्टेन्ड if he does not participate in the voting on repayment plan
but provision of the repayment plan affects his right to enforce the security. There is a secured creditor. What are the options available to him? उसके पास क्या क्या ऑप्शन है secured creditor के पास? क्या मीटिंग अटेंड कर सकता है? कर सकते हैं सर, बिल्कुल ये कर तो सकता है। वोट कर सकता है क्या? कर सकते हैं सर, फिर उसको वोट कर सकता फॉरबिट। है। हाँ, वोट में उसको यही ध्यान रखना है कि इफ ही डिसाइड्स टू वोट, देन he shall forfeit his right to enforce the security during the period of the repayment plan. इसको मैं और थोड़ा क्लियर लिख देता हूं, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रीपेमेंट प्लान। ठीक है जी। और उसके बारे में तो कभी भी कर ही सकता है, जो अनसिक्योर्ड पार्ट है उसमें तो कर ही सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। ये ठीक हुआ नहीं होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर डज नॉट फॉरफिट हिज राइट टू एनफोर्स सिक्योरिटी। बस इसी को यहाँ फुल स्टॉप लगा देता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, चलिए अब ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the debtor in consultation with you has prepared a repayment plan. Such repayment plan or any modification to the repayment plan shall be approved by a majority of, क्या आंसर होगा इसको भाई? मोर देन 3/4 इन वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है ना? तो ABC हो गए बाय एलिमिनेशन, और वैल्यू भी पता है, तो प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी भी है Proxy. है ना? और उसमें क्या लिखा है? एंड वोटिंग ऑन द रेजोल्यूशन, वोटिंग ऑन द रीपेमेंट प्लान होना चाहिए, है ना? वी आर रेजोल्यूशन फॉर रीपेमेंट प्लान, एक ही बात है। तो हमारा सेक्शन 111 क्या बोलता है? इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी एंड वोटिंग ऑफ द रेजोल्यूशन इन ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स। Whether you will submit report on the meeting of creditors after each meeting or after approval rejection of the repayment plan. आपको हर मीटिंग के बाद में, जैसे मान लो 5 मीटिंग हुई आपकी, तो हर मीटिंग के बाद में रिपोर्ट सबमिट करनी है या इकट्ठे? Final decision. राइट, सो रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड आफ्टर ए फाइनल डिसीजन हैज बीन टेकन रिगार्डिंग अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ द रीपेमेंट प्लान। इसका आंसर आपको सेक्शन 112 में मिलेगा। तो सेक्शन 112 बोलता है and the voting records of each creditor for all meetings of the creditors, ठीक है ना? Whether voting has to be done manually or it can be done electronically as well. मैनुअली होनी है या इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है? इसका आंसर रेगुलेशंस में देखा था हमने अभी, तो इट कैन बी बोथ वेज, मैनुअल भी हो सकती है और इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है। ये बैंक्रप्सी प्रोसेस की इलस्ट्रेशन है, इसको कल करेंगे। बैंक्रप्सी जब करेंगे तो इसको कर लेंगे, ठीक है जी। तो जो दूसरी वाली है इलस्ट्रेशन, उसको आप खुद कर लीजिएगा, बाकी बैंक्रप्सी कल करते हैं फिर। सर आज के केस स्टडी शेयर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल कर देता, अभी कर देता हूँ। ये तो ऑलरेडी भी शेयर्ड है कई बार, अभी दोबारा शेयर कर देता हूँ। सर कल क्या करेंगे? कल बैंक्रप्सी, वी प्रोसीड फॉरवर्ड। हाँ हाँ ठीक है सर। ओके सर, गुड नाइट। ओके जी, गुड नाइट।